حکومت اور تحریک انصاف میں دوریاں نزدیکیوں میں بدلنے لگی ہیں۔ فریقین میں مذاکرات کے لیے پہلا باضابطہ رابطہ ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے پیشگی مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی۔ بیرسٹر گوہر نے اسمبلی فلور پر جوڈیشل کمیشن کی بات دہرا دی، بولے بہت ہو گیا، اب 9 مئی کی دھول بیٹھنی چاہیے۔ نا آخر کار ہاں میں بدل گئی، رابطوں کی کڑی سے کڑی جڑ گئی۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کے لیے باضابطہ رابطہ۔ تحریک انصاف پیشگی مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی۔ حکومتی ذرائع نے بھی برف پگھلنے کی تصدیق کر دی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن چاہتی ہے۔ جلد حکومتی مذاکراتی کمیٹی بنا دی جائے گی۔ بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی فلور پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ دہرایا، بولے بہت ہو گیا، اب 9 مئی کی دھول بیٹھنی چاہیے۔ دعویٰ کیا اسلام آباد احتجاج کے لیے آنے والوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس ایوان کے لیے بھی سوگ کا دن ہے، کیونکہ اس کے دستک پہ 12 بندے شہید ہوئے ہیں۔ ایز اے لیڈر آپ یہ کہتے ہیں کہ گولی تو چلی نہیں ہے، وہ بندے مرے ہیں، ہم اپنے خاندان کے خاندان اجاڑ کر کے رکھ چکے ہیں۔ یہ ایوان ہے جناب اسپیکر، یہ چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن جس نے ظلم کیا ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا معاملے پر کچھ نہ بولے، مگر سب کہہ بھی گئے۔ کہا سب باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، وقت آنے پر بتائیں گے۔ مذاکرات کے حوالے سے ڈیولپمنٹ دیکھیں، آج ہوپ فلی انشاءاللہ میٹنگ ہوگی۔ ابھی تو اپنی ضمانتیں ہیں اور ان معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، جو کچھ چیزیں امانت ہوتی ہیں، آئی ایم نو پوزیشن ٹو ریپلائی۔ وہ عمر ایوب صاحب میں سے میرا خیال ہے پوچھا۔ مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا تعلقات میں کشیدگی کی برف پگھلے گی یا نشتن گفتن پرخاستن والی کہانی دہرائی جائے گی؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا مرکزی کردار فیض حمید تھے، دونوں کی پارٹنرشپ 2018 سے پہلے کی ہے۔ پارٹنرشپ 9 مئی میں بھی چلی۔ دونوں حصے دار تھے 4-5 سال 6 سال۔ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا جو مین کردار تھے، ان میں سر فہرست جو ہے وہ فیض حمید صاحب تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پارٹنرشپ جو ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی چلی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی چلتی رہی۔ 9 مئی کو بھی یہ پارٹنرشپ قائم تھی، 9 مئی کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی اور آج یہ ڈاؤن کیا گیا 2018 کے الیکشن میں کس طرح جو ہے پی ٹی آئی کو ہر طریقے سے امداد دی گئی، ڈاؤن بھی کی گئی۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پر سب کو متفق ہونا چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تار نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا اپوزیشن کا پارلیمنٹ میں بات کرنا احسن اقدام ہے، اسی سے بہتری آئے گی۔ لیڈر آف اپوزیشن نے اچھا کیا انہوں نے کہ جو پارلیمانی جمہوریت کا حسن ہے اس میں اضافہ کرتے ہوئے لشکر کشی کو چھوڑ کے پارلیمان میں آنے کو ترجیح دی اور یہاں پہ بات کرنی شروع کی۔ ہم اس طرح سے اپنی ایک دوسرے کو بات سنائیں اور سمجھائیں اور یہ بات زیادہ بہتر طریقے سے پہنچتی ہے۔ شاید نیت دونوں کی یہی ہوتی ہے کہ پاکستان آگے بڑھے، پاکستان کی عوام کا بھلا ہو، پاکستان ترقی کرے، خوشحالی میں جائے، اور اس میں ظاہر ہے کبھی اختلاف ہوتا ہے، کبھی اتفاق ہو جاتا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ زیادہ باتوں پہ اتفاق ہوا کرے۔ مہنگائی کی شرح نیچے گئی ہے، انفلیشن نیچے سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے، تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی 23% سے آج 15% پہ ہے۔ آپ کے بزنسز میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ملکی حالات اس قدر خراب ہیں کہ کوئی ایک جماعت اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ کہتے ہیں حکومت سے 25 نکات پر معاہدہ ہوا، جس میں کچھ پر عمل ہوا، کچھ پر باقی ہے۔ کوئی ایک جماعت ملک کے مسائل کا حل نہیں دے پائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان بڑے گرداب میں ہے، بڑے مختلف مسائل کا سامنا ہے، کچھ چیزیں بہتری کی طرف چلی ہیں۔ خرابی اتنی بڑی ہے یا اتنی بڑی تھی کہ اس شپ کو سیدھا کرنا آسان کام نہیں تھا۔ حکومت کے ساتھ ہماری کسی وقت تھوڑی بہت تلخ گفتگو ہو جاتی ہے، گلے شکوے ہوتے ہیں۔ ایک معاہدہ ریٹن فارم میں ہوا جس کے 25 پوائنٹس ہیں، اس معاہدے پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوا، کچھ چیزوں پہ ہوا، کچھ پہ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی انقلاب کا نعرہ لگا کے چلی تھی، آج خود بے سمتی کا شکار ہے۔
पार्लियामेंट की राहदारी में फैसल वाउडा का बैरिस्टर गौहर से आमना सामना हो गया। फैसल वाउडा ने कहा, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है सर, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। कानून हर किसी को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त नहीं देता। कानून के मुताबिक तो फ़ोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाज़त दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फ़ोन टैपिंग केस की समाअत पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, जज की नामजदगी के बारे में मुझे इल्म नहीं, कानून 2013 से मौजूद है। जस्टिस जमाल मंतुखेल ने कहा, फ़ोन टैपिंग कानून मुबहम है। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ, चीफ जस्टिस कहाँ जाएंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हमें रिपोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। आईनी बेंच ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करना पूरे मुल्क का मुतालबा था। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन और निसाब पर प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। हमारा एक मुश्तरका मुतालबा था कि मदारस अरबिया को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक किया जाए। ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मदारस अरबिया को वजारत तालीम के ताबे करके उसका निसाब बदलवाने की बात है, इस पर मैं यही कहूँगा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हक़ाइक़ पे बात करनी चाहिए। हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम मुल्क के अंदर किसी को भी लाखों तलबा के मुस्तकबिल से नहीं खेलने देंगे। किसी को नहीं पता कि फजलुर रहमान किस चीज़ की मुखालिफत कर रहे हैं। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आजकल सभी इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लेते हैं, हफ्ता 10 दिन तक मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगे। इस वक्त आपको बताएंगे, किसी को नहीं पता कि फजलुर रहमान किसी चीज़ की मुखालिफत कर रहे हैं। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, आजकल सभी इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लेते हैं, हफ्ता 10 दिन तक मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगे। उधर खोटकी में जहेज की आड़ में असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। डीआईजी सखर और एसएसपी घोटकी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि नेशनल हाईवे से जहेज की एक गाड़ी पर छापा मारा। अफगानिस्तान से स्मगल जंगी असलहा जहेज की पेटी से बरामद करके खातून समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद असलहा टैंक और बख्तरबंद गाड़ी तबाह करने की सलाहियत रखता है। असलहा घोटकी कच्चे में शर और ईंधड़ गैंग को सप्लाई किया जा रहा था। खबर आपको देंगे, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और फैकल्टी मेंबरान के साथ इंटरेक्टिव सेशन किया है। कराची यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा और फैकल्टी मेंबरान से कोर कमांडर कराची ने तफसीली मुलाकात की है। कोर कमांडर ने कहा कि दुश्मन क़ुव्वतों के ज़रिए फैलाए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे को समझना और इससे बचना वक्त की अहम ज़रूरत है। तलबा ने बातचीत और हौसला अफजाई पर इत्मीनान का इजहार किया। तलबा का कहना था कि सेशन से अंदाज़ा हुआ कि दुश्मन 5th जनरेशन वॉरफेयर के जरिए किस तरह एक झूठा प्रोपेगेंडा करता है। तलबा को जदीद असलहा और बख्तरबंद गाड़ी का मुआयना भी करवाया गया। चीन की 12 बड़ी कंपनीज के आला इख्तियाराती वफ्द ने धाबेजी खुसूसी इक्तसादी जोन की मुख्तलिफ साइट्स का दौरा किया। वफ्द ने इक्तसादी जोन में $1 बिलियन लागत से मेडिकल सिटी कायम करने की गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। इस मौके पर वजीर आला सिंध के मामले खुसूसी बराए सरमायाकारी कासिम नवीद कमर भी मौजूद थे। चीनी कंपनीज ने कार्गो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड बेवरेजेस और सोलर एंड विंड एनर्जी, लाइफ स्टॉक, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी में खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की। इजलास में वजीर आला सिंध के मामले खुसूसी कासिम नवीद कमर ने कहा कि धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मंसूबा चीन और पाकिस्तान के पायदार और काबिल फख्र दोस्ती की अलामत है। इस मौके पर चीनी वफ्द की अरकान को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मसरूफ दिन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात की और सीपीसी म्यूजियम का दौरा भी किया।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर ज़ोउ ज़िंगमिंग से मुलाकात में वज़ीर आला मरीम नवाज ने तजारत, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और ट्रेड हब के तौर पर उभरना काबिल तहसीन है। ऑटोमोबाइल, IT, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स समेत दीगर शोबों में शंघाई की कंपनियों से इश्तराक कार चाहते हैं। चीन के ताउन से माहिरीन की कैपेसिटी बिल्डिंग से पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री तेज़ी से फ़रोग़ पा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के CPC म्यूजियम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफद के अरकान को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तिका पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफद को चीन की तारीख, माओ ज़ेडुंग की जद्दोजहद, ब्रिटिश आर्मी से जंग और इंकलाब रूस की अक्कासी पेश की गई। मरीम नवाज ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के इर्तिका ने न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया है। पाकिस्तान और पूरी दुनिया चीन में आने वाली तब्दीली से मुस्तफीद हो रहे हैं। मरीम नवाज ने CPC म्यूजियम में रखी किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। कोह पैमाई शौक नहीं जुनून है, बाप का K2 सर करने का ख्वाब बेटे ने पूरा किया। इस कर्दू से कासिम भट्ट की रिपोर्ट देखिए। वो इसी का हो जाए। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अली रजा सतपारा भी ऐसे ही एक मुहिमजू थे जिन्हें कोपैमाई का जुनून था। उन्होंने 7 बुलंद पहाड़ों को 22 बार सर किया। इन 8000 मीटर बुलंद 4 चोटियों की 16 मरतबा तस्खीर भी शामिल है, मगर इस सब के बाद भी उनका दिल न भरा। उन्होंने K2 की तस्खीर की ठानी। 2 बार कोशिश की मगर ख़राब मौसम अड़े आ गया। वालिद की ये कहानी बेटे ने सुनाई। G2 को 7 दफ़ा क्लाइम किया है, कैचब्रम 2 को 4 दफ़ा किया था, ब्रॉड पीक 4 दफ़ा किया था, सिया कंगड़ी, बलतरो कंगड़ी। मेरे ख्याल में वालिद साहब पहला पाकिस्तानी ही है उस इन 2 को पे क्लाइम किया था। उसमें सिया कंगड़ी 2 दफ़ा, बलतरो कंगड़ी 1 दफ़ा, स्पांटिक को 3 दफ़ा क्लाइम किया था, नंगा पर्वत 1 दफ़ा क्लाइम किया था, K2 2 टाइम क्लाइम किया था। बस बदकिस्मती से वालिद साहब की किस्मत ने साथ नहीं दिया। अली रजा सतपारा ने बेटे अशरफ सतपारा को K2 सर करने की वसीयत की। मेरे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। सबसे पहले तो K2 के ऊपर वालिद साहब का जो अधूरा ड्रीम था वो पूरा करना, ये मेरे लिए बहुत मतलब मुश्किल है और टफ कौन फैसले मेरे ने करने थे वहाँ पे। अशरफ सतपारा ने वालिद की वसीयत का एहतराम करते हुए K2 की चोटी पर सब्ज़ हिलाली परचम गाड़ कर अपने ख़ानदान के और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। नौजवान कोहपैमा मोहम्मद अशरफ सतपारा ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 पर सब्ज़ हिलाली परचम गाड़ कर अपने वालिद का ख्वाब पूरा कर दिया। कासिम भट्ट, आज न्यूज़, सिकरदू, बल्तिस्तान। सादिकाबाद में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है। रुकने पंजाब असम्बली मुमताज़ अली ने डाकुओं और करप्ट क्रिमिनल काली भेड़ों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि डाकू बेलगाम होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात डाकुओं ने कार पर फायरिंग करके 2 अफराद को अगवा कर लिया। एक रोज कबल एक शख्स को कत्ल भी कर दिया गया। ये सादिकाबाद तहसील से 2 रातों में 3 बंदे अगवा हो गए और 1 महीने के अंदर 9 बंदे यहाँ सादिकाबाद से अगवा हैं और 2 महीने के अंदर तकरीबन 18 लोग अगवा हो चुके हैं और 2 बंदे शहीद हो चुके हैं। और हुकूमती MNA वहां पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब अच्छा है। अगर हल निकालना है तो करप्ट और क्रिमिनल का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी मेरिट के ऊपर ऑपरेशन करे, चाहे वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है, चाहे कोई और जिनके मफादात हैं बच्चे के अंदर, अगर उनका एहतसाब नहीं होगा, उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो फिर ऑपरेशन भी नाकाम होंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ खेलों की खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया गया। हारिस रऊफ ने नवंबर में मजमूई तौर पर 18 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार बॉलिंग की। 3 वनडे मैचेस में 10 विकेटें हासिल की थी। 6 बजे के बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.TV। देखते रहिए आज न्यूज़।